दोनों अगर हम टीम उत्तर प्रदेश के जो प्लेयर नजर आ रहे हैं, नितिन, अर्जुन देसवाल, विनय तेवतिया, विश्वास, आशु शिवम, उदय शिवम, शिवम टीम को बहुत लेके जाते हैं। अगर उन्हें खिलाया जाता है और सुपर 10 भी लगा देते हैं सब साथ कुछ साल के रिकॉर्ड से कितना पोटेंशियल के माध्यम से पहला टीम महाराष्ट्र ने टॉस जीता है और पूरे का फैसला किया है टीम की तरफ से एक नए बढ़ते तारे अर्जुन टिकट नंबर 2 ये आपको नजर आते हैं और आज भी आपको इस सेमीफाइनल नंबर में नजर आएंगे में कमेंटेटर जुड़ गए। स्वागत है मयूर आपका कमेंट्री बॉक्स में। Thank you so much, Monu. A very good afternoon to everyone. Welcome to the semi-finals day. And what a start it is, isn't it? Uttar Pradesh making the first raid. But unfortunately, it's Maharashtra. And good teams, good stars. They have, as Monu have rightly mentioned. And I'm sure it's going to be such good pressure because it's ticket to the final, which is going to happen with the Bucks. Two teams, when they go into tussle with each other, how can the points will not be there? Points comes in also for Uttar Pradesh, so very near to the middle line. Monu, this is going to be such a riveting contest, isn't it? लेकिन मजा आएगा पब्लिक को देखने के बाद, क्योंकि दो बड़े स्टार सिस्टम एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। कितने टच पॉइंट, मल्टी पॉइंटर रेड होने वाली है। 2 बार अटैक किया था, आसानी करनी पड़ेगी रेडर की जब आप शुरुआती मिनट्स में रेड करने जा रहे हैं और अपोनेंट्स के 2 प्लेयर्स को अपने संपर्क में ले रहे हैं। इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती, इससे बेहतर कॉन्फिडेंस आपके पास और क्या ही हो सकता है। Oh yes, absolutely, Monu. And those touch points are becoming so very important, isn't it? Also, your footwork, your ground movement, your clearance. And it seems like there is a point. There is a point for Uttar Pradesh. And yesterday also, while they defeated Uttar Pradesh, the defending champion services, where they're playing in whites, but then those now the northern India counterparts are getting stronger and stronger. I'm a little surprised that Haryana has not been featuring very heavily from the back line into the bonus line, trying to make a mule attack. That kick becomes so important. Just in number 99 yesterday, Shivam Chaudhary, he's been very huge. He claims a point here, just a feather touch. Line into the bonus line, trying to make a mule attack. That kick becomes so important. Just in number 99 yesterday, Shivam Chaudhary, he's been very huge. He claims a point here, just a feather touch. And there you go, Uttar Pradesh gets another point. This is really lovely. He has to be so clever because he was aware, isn't it, Monu, that the block corridor can come very quickly from the front. So this is really clever. I don't feel they have got a point here, Maharashtra, but they are trailing by 2. Uttar Pradesh 4, Maharashtra 2. पिछली रेड में हमने देखा शिवम जहां पर रेड कर रहे थे, एक टच पॉइंट लेकर आए, बड़ी चतुराई के साथ वो पॉइंट निकाला। उससे पहले 2 पॉइंट भी निकाले थे उन्होंने। 2 पॉइंट से मुझे याद आया कि जर्सी नंबर 2 रेड कर रहे हैं टीम उत्तर प्रदेश की तरफ से। इनको इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं। अर्जुन देशवाल जाते ही अपना परचम लहराएंगे। उनके पैर को पकड़ने का प्रयास तो था, लेकिन जर्क देते हुए बचाया अपने आप को और पॉइंट टीम उत्तर प्रदेश के लिए जाएगा। एक और बड़ी सफलता। और मयूर, अगर शुरुआती मिनट्स में रिवाइवल नहीं दिला पाई महाराष्ट्र की टीम और ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया टीम उत्तर प्रदेश ने, तो फिर ये महाराष्ट्र के लिए ज्यादा ठीक नहीं होगा। और उसको ठीक करने के लिए जिम्मेदारी बहुत सारे मैचेस में उठाई है इस योद्धा ने। आदित्य, ये टच पॉइंट लेकर वापस आ मयूर। Yes, very correctly said. Jersey number 11, Aditya Tushar Shinde, and very seriousness on his look, isn't it? And he knows, and everyone has that tall structure on their body. There is a point here. Arjun Deshwal, what a name. And we have heard what those dignified anchors were saying on the court, that he has recently been posted in a very senior category in that police department. That's why everyone were giving a very rousing applause to Arjun Deshwal.
has been such an वही कार्य कर रही है, लेकिन फिलहाल जो फैसला है वो टीवी एम्पायर के पास पहुंच गया है। क्या मांग की जा रही है कि जो टच पॉइंट दिया था वो गलत था, और टीम उत्तर प्रदेश ने वही मांग की थी कि जो आपने टच पॉइंट दिया है पिछली रेड पर आदित्य को, वो देना नहीं चाहिए। और आप ऐसे झूठे केस दर्ज कराएंगे मयूर तो फिर उनको खारिज कर दिया जाएगा, और बार बार आप जा नहीं सकते। एक या दो बार आप जा सकते हैं, उसके बाद वो भी खत्म है, यानी कि अनसक्सेसफुल रिव्यू, यानी कि आपने गवा दिया है डीआरएस। अब आप नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर जंप लगाने का प्रयास था, डबल थाई होल्ड किया, और जो उड़ान भरना चाहते थे रेडर, उनके प्लेन को पूरी तरह से क्रैश किया है। जर्सी नंबर 4, कौन नहीं जानता है इस चमकते सितारे को, आशु। Yes, unfortunately, Ashu has been demolished, isn't it? But here comes Maharashtra's number 11 that we were talking about so briefly, Aditya Tushar Shinde. Those kicks become so important, and every time I've seen in the previous league matches also, while players try and put across their lifeline, of course, from the back line into the bonus, mostly you've seen the players getting very heavily on the right flank. That's where the trouble starts. We'll talk about that later. Number 3, Vinay has come in. Again, that's the important of talking about how swiftly you can move from one corner to the other. How can you grab your attention on the feet? How can you retain that gravity, that spring on your steps from right to left, try and make the swift touches? The toe touches are important. Of course, you can go out with the bonus points. But here at Maharashtra 5, Uttar Pradesh 5, it's oh, lovely. Easier touch point here from number 1. That's from Maharashtra, which has come in. It's Shivam Anil Patare. ये तालियों की गड़गड़ाहट, ये शोर शराबा बता रहा है कि पॉइंट तो आया है शिवम के लिए। असलम के साथ अगर किसी ने साथ दिया है टीम महाराष्ट्र में एज ए रेडर, तो फिर शिवम ने अपने हाथ को बिल्कुल भी पीछे नहीं रखा है। और देखिए, थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश ने अच्छा स्टार्ट लिया था, डोमिनेट कर रही थी, लीड कर रही थी, अभी देखते ही देखते पलटवार कर दिया टीम महाराष्ट्र ने। और इसलिए मैं बार बार चर्चा करता हूं कि महाराष्ट्र के फैंस हमेशा खुश होते हैं अपनी टीम से, तो ज्यादा देर दुखी नहीं होने देते अपने फैंस को। बोनस का ट्राई किया है अर्जुन ने, और बोनस लेकर जाएंगे, बोनस के बादशाह भी है ये। Yes, becomes hugely important, to be honest. If you're far on your top of your game, you know you're trying to enter the final today. At the other end, it's Indian Railways who are waiting in the wings to play versus Chandigarh. So if there is something lurking around the corner, there has to be. You never know. I'm sure there are many who will be banking that it might be Maharashtra versus Railways. This has played splendid kabaddi in this tournament. इंडियन रेलवे और चंडीगढ़ भी अब अपना अगला मुकाबला खेलने के लिए तैयार हैं, जो कि सेमीफाइनल नंबर 2 खेला जाएगा इस संस्करण का। अर्जुन ने बैक किक लगाने का प्रयास किया है, कॉर्नर के ऊपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, लगातार अटेम्प्ट कर रहे हैं। और अर्जुन ने कल जिस प्रकार से मुकाबले को पलटा था वो काबिले तारीफ था। 30-32 मिनट तक टीम पिछड़ रही थी, और उसके बाद कमबैक किया था सर्विसेज के विरुद्ध, और उस मुकाबले को जीत लिया और पहुंच गए सेमीफाइनल्स की तरफ। सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल, यानी कि 5 प्लेयर मयूर जो बेंच पे रखे जाते हैं, उन्हें भी वो टेस्ट किया जाएगा इस बड़े मुकाबले में, और बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको अपनाना चाहिए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सुपर टैकल सिचुएशन है टीम उत्तर प्रदेश के लिए। एक गुड न्यूज भी है और ये बैड न्यूज भी है। अगर यहाँ से सुपर टैकल ऑन किया मयूर तो 2 पॉइंट जरूर मिलेंगे आपको, लेकिन अगर आपने एक भी डिफेंडर को या एक भी रेडर को खो दिया तो फिर ऑल आउट की दहलीज की तरफ चले जाएंगे। और जिस प्रकार से वो दृश्य देखने को मिले कि पहले सेल्फ आउट हुए अर्जुन, और उसके बाद एक डिफेंडर ने उन्हें डैश आउट करने की कोशिश की गई है, रेडर ने अपने आप को बचाया और शिवम ने सुपड़ा साफ ऑलमोस्ट कर दिया है। सिर्फ एक ही योद्धा बचा हुआ है जो 2 पॉइंट्स निकाल सकती थी सुपर टैकल करके। टीम उत्तर प्रदेश वो 2 पॉइंट देकर आई है टीम महाराष्ट्र को, और अब रिवाइवल चाहिए ही होगा, वरना अगली रेड में टीम ऑल आउट हो जाएगी और महाराष्ट्र ऑल आउट इनफ्लिक्ट करेगी। झुंड में शिकार मयूर,
ये शुरुआती 9 मिनट में ही महाराष्ट्र ने टीम उत्तर प्रदेश को ऑल आउट कर दिया है। Oh yes, what a gameplay it has been from Maharashtra, isn't it? They have all outs और काफी अच्छा देखने को मिला यहाँ पे। देखिए कैसे, जैसे आपने सही कहा, रिवाइवल बहुत ही जरूरी था, लेकिन वहाँ पे जैसे हमने बात की रिवाइवल की, मीडिया आएंगे, ऑलरेडी यू हैव द बेस्ट ऑफ द सिलेक्टर्स वर देयर इन द ग्राउंड, द एंकर्स हैव ऑलरेडी, उन्होंने प्रेशर डाल दिया है बाय सेइंग द डेजिग्नेशंस एंड क्या अच्छे खिलाड़ी हैं। और ऑफ कोर्स ये फाइनल का स्लॉट के लिए हम खेल रहे हैं, उसके लिए बात करेंगे। बाकी अभी महाराष्ट्र फिर से आई है रेड के लिए, थोड़ा स्वीपिंग सक्सेस के लिए थोड़ा सा लो गए थे टच के लिए, और एक पॉइंट जरूर छुड़ाने में कामयाब। ये देखिए लास्ट फाइनल टच में उन्होंने कहा अच्छा चलिए मैं जर्सी नंबर 3 हूँ, 3+3 जर्सी नंबर 6 को मैं बाहर निकाल के जाऊंगा। ये बाहर जाने का रास्ता बहुत सारे रेडर्स देखते हैं, बहुत सारे डिफेंडर्स देखते हैं, लेकिन एक टीम बाहर जाएगी और एक टीम जाएगी सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल की तरफ। पता चल जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ पर चतुराई दिखाई है, रेडर ने प्रयास बहुत किया लेकिन कोई भी टच पॉइंट आएगा नहीं। अभी मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही 2 मिनट का समय और गुजरा है कि लीड एकदम से महाराष्ट्र के पास आ गई है और शुरुआती मिनट से ही डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश 8 पर खड़ी है और 13 पॉइंट्स महाराष्ट्र के पास हैं। अगर ये बढ़त ऐसे ही बढ़ती चलेगी तो बहुत दिक्कत। डैश आउट करने का प्रयास, ये कह रहा है कि टच के साथ बोनस भी दे दीजिए। डैश आउट प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। आशु जो कि राइट कॉर्नर की भूमिका निभा रहे थे, उनके पास से, उनके नीचे से वो बोनस निकालने का प्रयास था और उसके बाद लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से वो डैश आउट तो आया है, लेकिन लॉबी के साथ कनेक्शन भी देखा गया था। और मयूर, बोनस निकालने का तरीका जैसा कि सभी दर्शकों को पता है कि एक पैर हवा में, दूसरा पैर बोनस लाइन की पूरी तरह से अंदर होना चाहिए और कोर्ट पर 6 या 7 खिलाड़ी होने चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो यकीनी तौर पर बिना टच के आप, लेकिन कोई भी टच पॉइंट आएगा नहीं। अभी मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही 2 मिनट का समय और गुजरा है कि लीड एकदम से महाराष्ट्र के पास आ गई है और शुरुआती मिनट से ही डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश 8 पर खड़ी है और 13 पॉइंट्स महाराष्ट्र के पास हैं। अगर ये बढ़त ऐसे ही बढ़ती चलेगी तो बहुत दिक्कत। डैश आउट करने का प्रयास, ये कह रहा है कि टच के साथ बोनस भी दे दीजिए। डैश आउट प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। आशु जो कि राइट कॉर्नर की भूमिका निभा रहे थे, उनके पास से, उनके नीचे से वो बोनस निकालने का प्रयास था और उसके बाद लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से वो डैश आउट तो आया है, लेकिन लॉबी के साथ कनेक्शन भी देखा गया था। और मयूर, बोनस निकालने का तरीका जैसा कि सभी दर्शकों को पता है कि एक पैर हवा में, दूसरा पैर बोनस लाइन की पूरी तरह से अंदर होना चाहिए और कोर्ट पर 6 या 7 खिलाड़ी होने चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो यकीनी तौर पर बिना टच के आप 1 पॉइंट लेकर जाते हैं और वो रेडर के अकाउंट में ही डाला जाता है। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही एक छोटे नीटिग्रिटीज होते हैं, और यहाँ पे देखिए उड़ के गए थे, इसी की बात हम कर रहे थे। नंबर 3 असलम मुस्तफा इनामदार, और उन्होंने इनाम दे दिया अपनी टीम को। देखिए मैं भागूंगा और आपके साथ आप लोग को मैं भाग मिल्खा भाग नहीं होने दूंगा। इसके साथ देखिए महाराष्ट्र के पॉइंट्स में बढ़ोतरी 13 से 16 हो चुका है और 7 पॉइंट का इजाफा। ये देखिए, that's a very huge lead, let me tell you. I'm sure it's we have seen yesterday in the quarterfinals, 4 courts were there. You've seen, and I was mentioning about that match between Bihar, Gujarat, then how Uttar Pradesh knocked out defending champion services. They also felt the pressure. बहुत सारा pressure बनाया था. It's almost like game of cricket, as I keep on mentioning yesterday also. First innings में आप जितना runs बनाएंगे, second innings में उतना ही कम होगा, isn't it? And वही इसलिए आप first half में अच्छा खेले. Anyways, the super raid is on here. Jersey number 11 from Maharashtra, Aditya Tushar Shinde. काफी जाना पहचाना नाम है और उनको बधाई भी मिलेगी इनकी कलीग से, क्योंकि उन्होंने ला दिया। देखिए बोनस से एंगल कैसे एक म्यूल अटैक बिल्कुल चेहरे पे डाल के दिया, और वो आगे से ब्लॉक भी करना चाहते थे, लेकिन फिर घबरा भी गए थे कि उनके साथ 2 रेडर्स तो बाहर ना निकाले। बट महाराष्ट्र 17, उत्तर प्रदेश 10। ये फासला एक तो बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ देखेंगे तो टीम उत्तर प्रदेश के ऊपर फिर से खतरा मंडरा। क्या कुछ हुआ है इस मुकाबले में आपके कोर्ट के ऊपर? जर्सी नंबर 11 यानी कि आदित्य को ही भेजा है और आदित्य ने जाते ही वो अटैक भी किया है।
और किसको बाहर किया है शिवम, यानी कि एक अहम रेडर को बाहर किया है। अब जिम्मेदारी पूरी तरीके से मयूर आ जाएगी विनय तेवतिया के कंधों पर। आपको बोनस नहीं, इस समय 1 या 2 टच पॉइंट चाहिए, मल्टी पॉइंटर रेड चाहिए ही होगी, वरना ये दूसरा ऑल आउट आने वाला है टीम उत्तर प्रदेश के लिए। जैसे जैसे समय निकलेगा दबाव बढ़ता जाएगा। विनय के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर अटैक किया और वो शायद कंफर्म है कि 1 टच पॉइंट आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर बहुत दिक्कत। लेकिन दिक्कत परेशानियों से फिलहाल बचने के लिए बोनस के साथ टच पॉइंट आ गया है। रिवाइवल चाहिए था, रिवाइवल मिल गया है मयूर। Oh yes, you're talking about consistency. That's has to be the very important key moments here. Maharashtra again, and you're rightly mentioning about how number 11 has performed, isn't it? He has been such an important raider, Aditya Tushar Shinde, and इससे पहले हमने देखा शिवम चौधरी को निकाला, फिर विनय तेवाती आए थे, उन्होंने पॉइंट्स लेके अपने प्लेयर को रिवाइवल किया। इसका मतलब वो ऑल आउट नहीं हुए, तो इसलिए प्रेशर दोनों तरफ है। लेकिन अब अगर देखेंगे 6 पॉइंट से है, लेकिन इट कैन बी वेरी ड्रेडफुल इन सम कॉर्नर, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ, क्योंकि सिर्फ 6.5 मिनट का टाइम है बाकी। ये बॉक लाइन से एक टच पॉइंट करने की कोशिश है, लेकिन जो डिफेंडर्स है महाराष्ट्र के, उनको भी पता है दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग ऑल आउट। There we go. यही चाहते थे, बार बार 2 हाफ सेमी सर्कल के घेरे में आके ब्लॉक बार बार करने की कोशिश किया था। जैसे ही बोनस लाइन से जर्सी नंबर 8 में साहुल कुमार ने, बेग पार्डन, शुभम कुमार ने एंकल होल्ड किया, बाकी लोग को आके ब्लॉक करने का बहुत अच्छा मौका मिला। सो 22 पॉइंट पे है महाराष्ट्र, 14 उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे एक अलग से रणनीति होनी चाहिए मोनू उत्तर प्रदेश के, क्योंकि आई एम श्योर दे विल बी ग्रोइंग इन इंस्पिरेशन। यहाँ पे विनय ने कर दिखाया फिर से कमाल। Beg your pardon, it's not Vinay, असलम मुस्तफा इनामदार ने फिर से, आई थिंक बैक टू बैक पॉइंट्स वो लेने में कामयाब हुए हैं यहाँ पे मोनू। देखिए, जिस टीम के पास असलम जैसे प्लेयर हों, और ये नाम आपको बड़ा कमाल का लगेगा, असलम इनामदार, बड़ी ईमानदारी के साथ गेम खेलते हैं, कोई चीटिंग नहीं करते हैं, इजीली पॉइंट मिलेगा, इजीली क्लेम करेंगे, वो झूठे क्लेम भी नहीं करते हैं। तो इनका गेम बहुत अलग लेवल का है। उत्तर प्रदेश को मिलेगा 1 पॉइंट, इस बार वो टच पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से असलम का साथ दिया है, आदित्य ने साथ दिया है, शिवम ने, वो काबिल तारीफ है। और आज महाराष्ट्र सेमीफाइनल तक पहुंची है, तो उसका जो श्रेय है वो असलम के साथ साथ शिवम को और आदित्य को भी उतना ही जाता है। एक और टच पॉइंट, ऐसी कोई भी रेड नहीं देखने को मिलेगी जहां पर महाराष्ट्र के रेडर्स को बैकफुट पे नजर आए। वो डैश आउट करने का प्रयास तो किया, लेकिन जंप लगाते हुए मिड लाइन को क्रॉस किया है। That has been an important crossing here. Maharashtra gets one more vital point. Look at how they form as a team. इसलिए एक टीम में जाना इतना जरूरी है। वो डैश कर रहे हैं, भाग रहे हैं, फेंक रहे हैं, एंकल होल, थाई होल, और रन से हट जाएगा और फीते खुल जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उससे होने लग जाएगी। इसलिए होता है क्योंकि थोड़ा सा मोमेंटम बिगड़ जाए बैट्समैन का, टाइम पास हो जाए, तो ये सारे चीजें करनी पड़ती है कबड्डी के मैच पर भी। अगर सामने वाली टीम लगातार अटैक कर रही है तो आप संयम दिखाइए, गलती मत कीजिए, एडवांस टैकल की आवश्यकता नहीं है। अभी बोनस लाइन सिर्फ एक लाइन की तरह एक्टिव नहीं है, तो फिर यहाँ पर फंसाइए, अंदर इनवाइट कीजिए, और किया भी था। लेकिन आप कैसे रोकेंगे महाराष्ट्र के रेडर्स को? ये तो कसम खाकर आए घर से कि प्रतिद्वंदी चाहे जो करे, हमारा सिर्फ एक ही कर्तव्य, एक ही फर्ज है, मिड लाइन को क्रॉस करके अपने घर वापस आना है। रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत फास्ट पेस पर। ओ, इसके बीच में आ गए 2 पॉइंट्स यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए। और देखिए लीड पे लीड बनाते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर, बहुत ज्यादा प्रेशर। ये दबाव कैसे कम कर सकते हैं? आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे वहाँ पे। अभी शिवम चौधरी आए हैं, उनके लंबे कट काठी के भी हैं। आई थिंक दैट आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? दैट मिनिमल ग्रेविटी जो आप रखते हैं टच पे, कितना स्विफ्टली कर सकते हैं। हमने कोई मेंढक वाली जंप देखी नहीं है। कल मैंने बहुत बार मेंढक वाली जंप बहुत देखी थी, इट वाज वेरी इंप्रेसिव। अब यहाँ पे देखिए कुश्ती भी देखने को मिली। मोनू, आपको कुश्ती से अगर प्यार है, आई एम श्योर यू कैन यहाँ पे थोड़ा सा लाइट
लगा सकते हैं वहां पे। देखिए 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 कैसे पुल बुल के उनको पूरा मैट पे ठप कर दिया। अच्छी पॉइंट आई यहाँ पे। जी बिल्कुल मयूर, आपने कुश्ती की बात की, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा, शायद वहां पर वो कहना चाह रहे थे लग जा गले फिर ये हंसी रात हो ना हो, फिर इस संस्करण में मुलाकात हो ना हो। और मुलाकात नहीं होगी ये तो तय है, क्योंकि ये आखिरी मुकाबला खेल रही है टीम्स। इसके बाद फाइनल में एक ही टीम जाएगी। एब्सोल्युटली, वेरी मच ट्रू। सही कहा आपने, लग जा गले। अभी थोड़े दिन पहले ही वैलेंटाइंस डे खत्म हुआ है मोनू। तो अगर उस समय होता तो मजा आता, isn't it? और पिंक भी पहना हुआ है उत्तर प्रदेश ने, लाल गुलाब से ज्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन देखते हैं अगर यहाँ पे प्यार बिखरते हैं या दुश्मनी, क्योंकि ये ऑन एंड ऑफ द फील्ड तो होता रहेगा। आई एम इस तरह सजा के रखा था कि खाइए, लेकिन उसके बाद वो थोड़ी सी दान दक्षिणा भी देनी पड़ती है। आपने प्रयास ही नहीं किया है पकड़ने का, वो इजीली टो टच कर ले गए। रिवाइवल चाहिए था, लेकिन रिवाइवल मिला है टीम उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उनके लिए जरूरी। मना कर रहे हैं इस समय आदित्य के, कोई टच पॉइंट है नहीं। इस बार ना सही, अगली बार सही। और ये बैटल थोड़ा सा क्रिएट तो हुआ है तो डिफेंडर्स और रेडर्स के बीच में, और पूरा समय व्यतीत किया है। देखिए आदित्य जिस प्रकार से रेड कर रहे थे, उनके रिएक्शन चेक कीजिए। उन्होंने कहा है आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी फैसला आने दीजिए। और फैसला आ गया है, महाराष्ट्र को पॉइंट मिल गया है। वो टच पॉइंट था और टच पॉइंट मिल गया है। आपको लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं होती है मयूर, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। Yeah, that's so much crucial, isn't it? As you said, ऊपर वाला सब देखता है। किया है। देखिए आदित्य जिस प्रकार से रेड कर रहे थे, उनके रिएक्शन चेक कीजिए। उन्होंने कहा है आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी फैसला आने दीजिए। और फैसला आ गया है, महाराष्ट्र को पॉइंट मिल गया है। वो टच पॉइंट था और टच पॉइंट मिल गया है। आपको लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं होती है मयूर, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। Yeah, that's so much crucial, isn't it? As you said, ऊपर वाला सब देखता है। Everyone is looking at you. There will be, oh, that might be a bit of an injury on the neck. That's something that Maharashtra will be little worried about. They have to look who is actually gone down. Oh, that leg! It hit at a corner of his neck. It doesn't get easy at all. But I think that Uttar Pradesh now seriously have to look forward because for the past 5-6 minutes, it's been a difference of 11 points between Maharashtra and Uttar Pradesh. टीम उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे मुकाबले जीते हैं, लेकिन वहां पर मुलाकात कुछ अलग टीम से हुई थी। लेकिन यहाँ मुलाकात हुई है टीम महाराष्ट्र से। वो जितनी ऑन पेपर स्ट्रांग है टीम, उतनी ऑन फील्ड भी ये स्ट्रांग है। लेकिन स्ट्रांग तो अपने फैंस के नजरिए से भी है। अगर आप वोटिंग कराइए तो वोटिंग के हिसाब से भी महाराष्ट्र बहुत आगे जाएगी, क्योंकि प्यार मिलता है इस टीम को। और असलम ने वो प्यार कमाया है, वो मुफ्त में नहीं मिला है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, और मेहनत इस समय टीम उत्तर प्रदेश को करनी है। अगर आप इस आखिरी के 12 मिनट में पलटवार करना चाहते हैं, इस 11 पॉइंट्स की लीड को उतारना चाहते हैं, तो फिर आपको बोनस के साथ रिवाइवल चाहिए। और टीम उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी कमजोर कड़ी ये रही है कि जब जब इनके प्लेयर्स कोर्ट से बाहर गए, रिवाइवल से तो अंदर नहीं आए। ज्यादातर प्लेयर रिवाइवल से अंदर नहीं आए। एक दो रिवाइवल आपने दिला दिया, उससे काम नहीं चलता है। ऑल आउट होने के बाद टीम मैट पर आई है, और जब टीम ऑल आउट होने के बाद मैट पर आ रही होती है, तो फिर आप बिल्कुल पीछे रह जाते हैं इस बैटल में। जो अच्छी शुरुआत उत्तर प्रदेश ने सोचा था कि महाराष्ट्र को ऑल आउट देंगे शुरुआती मिनट्स में, वो 4-5 पॉइंट जल्दी से निकाले थे। चौथे गियर में स्टार्ट किया था अपनी गाड़ी को, महाराष्ट्र ने पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया उस पर, और ऑल आउट पर ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया है, और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को पकड़ भी साथ दिया है। सुपर टैकल कर लिया टीम उत्तर प्रदेश ने, और ये सुपर टैकल आपको एक बार नहीं, अब बार बार करने पड़ेंगे, हर बार करने पड़ेंगे। अब कहानी कुछ ऐसी रही है रेडर्स की, टीम उत्तर प्रदेश की तरफ से अर्जुन देसवाल ने 9 रेड डाली हैं, और सिर्फ उनके पास वो 4 रेड पॉइंट हैं। और वहीं अगर आप अपोनेंट्स को चेक करते हैं, तो उनके पास बहुत सारी रेड है, बहुत सारे पॉइंट है। हम रेडर्स की चर्चा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र के डिफेंडर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान हमारी तरफ भी लेकर आइए। रेडर्स इस मुकाबले को नहीं जिता रहे, डिफेंडर्स भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे फिर वो एडवांस टैकल ही क्यों ना सही। बिल्कुल बैकलाइन और वॉक लाइन के बीच में ये टैकल किया है, और फिर से लाकर खड़ा कर दिया है टीम उत्तर प्रदेश को, जहां से ऑल आउट हो सकती है। सुपर टैकल ऑन, पिछली बार इन्होंने सुपर टैकल किया था,
2 पॉइंट्स निकाले थे, लेकिन महाराष्ट्र को पता है कि अगर ये तीसरी रेड नहीं है, डू और डाई रेड नहीं है, तो फिर अननेसेसरी रिस्क लेने की आवश्यकता है नहीं। और असलम को पता है कि कैसे अपने मुकाबले को चलाया जाता है, और ये एम्प्टी रेड डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करते हैं। जहां पर जरूरत होती है पॉइंट्स की, वहां पॉइंट निकालते हैं, जहां जरूरत होती है टाइम को किल करने की, वहां ये टाइम किल करते हैं। साहुल ने एक फटाफट से क्विक रेड डाली है, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं उसी थर्ड रेड का। ये अंदाजा हो गया है टीम उत्तर प्रदेश को कि पहली डू और डाई महाराष्ट्र की तरफ से आएगी, और असलम फिर से जाएंगे, वॉक लाइन को क्रॉस करेंगे, रेड को वैलिड करेंगे, वही 25 26 27 सेकंड्स व्यतीत करेंगे, और सिग्नल दे दिया है वहां पर रेफरीज को कि उन्हें एक छोटा सा टाइम आउट भी चाहिए, क्योंकि डू और डाई आने वाली है, तो थोड़ी सी तैयारियां जरूरी है। एक बार फिर से रेड को वैलिड करेंगे और वापस चले जाएंगे। की बात करेंगे तो 11 रेड इन्होंने भी डाली है, रेड पॉइंट 4 उनके पास जरूर, लेकिन ऐसी सिचुएशन में रेड करने के लिए गए जहां पर सिर्फ एम्प्टी रेड ही डालनी है। और वही मैं बात कर रहा था कि ये अपने स्टैट को थोड़ा सा खराब करने की तरफ देख लेते हैं कि एम्प्टी रेड डालनी है, मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वही एम्प्टी रेड उन्होंने डाली थी। अब डू और डाई पर आई है, तो अपने एक अहम रेडर को भेजा है, जर्सी नंबर 11। टोटल 11 रेड पॉइंट इनके पास, लेकिन ये 12वां पॉइंट बहुत जरूरी हो जाएगा, वरना 2 पॉइंट जाएंगे टीम उत्तर प्रदेश के लिए। शुभम, यू ब्यूटी मैन, जैसे ही देखा कि अंदर की तरफ आए, जंप लगाना चाहते, दोनों पैर को पकड़कर धड़ाम से उठा के पटक दिया है। और कहा है कि सुपर 10 आपने लगाया जरूर है, लेकिन हर बार पॉइंट मिले ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि टीम उत्तर प्रदेश भी बहुत स्ट्रांग थी, इस मुकाबले में नहीं है। अब डू और डाई पर टीम उत्तर प्रदेश गई थी मयूर, महाराष्ट्र की डू और डाई पर आपने पॉइंट निकाला, 2 पॉइंट निकाले, लेकिन अपनी बारी आई, खुद गए डू और डाई पर, तो पॉइंट देकर आए। अब इससे मैं ये पूछना चाहता हूं टीम उत्तर प्रदेश से कि आपने किया क्या है पिछले 2.5-3 मिनट में? 2.5-3 मिनट निकालने के बाद तो पता यही चला है ना कि आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिला है। एक पॉइंट से क्या आप लीड को कवर कर जाएंगे? I can understand you can the feelings, isn't it, Monu? It's not about the difference in 10 points. It's all about how your attacking force has been, and it's been a little disappointing. I can understand. Every raid needs to be so very crucial. You need to target those important members in your opposition's corner, which you are not being able to do so. And you can only see the game slipping away and slipping away very fast, because it's just 3 minutes remaining, which is less than 200 seconds. And I think that question is so much valid, that what have you done in the past will now become so much heavily implicated on you. Because if you look at the table of what has come in, Arjun Deswal, nine raids, and then if you compare the final deal, as Uttar Pradesh makes the raid in the last 2.5 minutes to start off. अभी जिस सवाल पर हम नहीं रहेगा कि आपने अगर अपोजिट डू और डाई पर सुपर टैकल कर लिया, 2 पॉइंट निकाल लिए, तो फिर वो चीज आपकी कहां पर हुई? क्या आप सुपर टैकल के लिए आए तो सीधे Oh की yes, तरफ से डाली जाए, अपोनेंट्स के पास सुपर टैकल ऑन हो तो फिर पॉइंट आ जाए, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है। फिर से गए आदित्य शिंदे, उन्होंने पॉइंट निकाला है और अपोनेंट्स के सीने पर वार किया है। लीजिए लीजिए, ये देखिए, टेक इट इजी, बड़े आराम से, ये आराम का मामला है, कोई जबरदस्ती नहीं। कॉर्नर के पास पहुंचे, कॉर्नर और इनके प्लेयर ने एंकल होल्ड किया और वहीं से ब्लॉक कर दिया, और एक और ऑल आउट इन्फ्लिक्ट कर दिया। ये देखिए इनामदार की ईमानदारी, कोई जबरदस्ती नहीं, खड़े हुए हैं, वो टच पॉइंट भी नहीं लेना चाहते हैं। वो सामने वाले का घर लुटा हुआ है, लेकिन फिर भी अब कह रहे हैं कि वो कुछ लूटना ही नहीं है, वो बहुत धन है हमारे पास। 25-26 सेकंड व्यतीत करेंगे, उसके बाद हैंडशेक करेंगे और बधाई दे रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। सेल्फ है, थैंक यू सो मच बोला है कैमरामैन को कि हमने ये एक और ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया है इस समय। ये भावनाओं से खेला जा रहा है इस समय टीम उत्तर प्रदेश की, और असलम इनामदार को बहुत अच्छे तरीके से पता है कैसे मुकाबले को चलाना है। और मयूर, आपको बता दें, असलम को रेडिंग डिपार्टमेंट के लिए पहचाना जाता है, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने हाई फाइव जड़ दिया है, 5 टैकल पॉइंट है उनके नाम। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि टीम उत्तर प्रदेश के पास बहुत सारे डिफेंडर्स हैं, लेकिन आज कहानी में ट्विस्ट कुछ इस प्रकार से आया है कि
5 अलग अलग डिफेंडर्स ने टीम महाराष्ट्र के लिए टैकल पॉइंट निकाले, जबकि टोटल 5 पॉइंट टीम उत्तर प्रदेश के डिफेंडर्स के पास ही नहीं है। सिर्फ 4 पॉइंट है, सिर्फ 4 टैकल पॉइंट है टीम उत्तर प्रदेश के पास, जिसमें 5 टैकल पॉइंट तो महाराष्ट्र के असलम ने निकाल लिए। उसके बाद एक टैकल पॉइंट सुरेश के लिए भी आ जाता है और 2 टैकल पॉइंट जयेश भी निकाल लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है। Oh, yes, it's all about the game of margins, isn't it, Mono? And there you go, Arjun Deshwal just trying to finish it off. They also know number 3 versus number 3. They're saying, okay, we can take some photos. They are taking the photos and they get a point. And